अपने पिछले लेक्चर में हम नंबर्स को 99 तक पढ़ चुके हैं और नंबर्स को हम किस तरह पढ़ा देखा हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम नंबर्स को 10 के मल्टीपल में लिखेंगे और ये देखेंगे कि नंबर को 3 डिजिट नंबर यानी 100 की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। Assalamu alaikum my dear students, hopefully you all will be alright and doing well at your home. I am Haris Afzal from Moonlight Publisher. Dear students, in the previous section we have studied about the numbers up to 99. In this section we are going to discuss the numbers in the multiple of 10. In this section we will make a number which is a 3-digit number, that is 100. We can see how can we study the number, how can we write the number, how can we write the number in the place value chart. Let we start our topic, the number in the multiple of 10. First of all, we will discuss the lessons outcome of this topic. We will study what we are going to discuss in this lecture. In this lecture we will tell the counting in tens. It means multiple of 10. Next, recognize the 100 as a 3-digit number, which is a main lesson outcome. In this we are going to identify and we are going to introduce another number of 3-digit number. So dear student, a picture in front of you shows that 110 is equal to 10. T-E-N 10. We can say that 10 is equal to 10. This is a one bundle of 10. If we make two bundle of 10, what it will be? It will be 20. And if we have 4 bundle of 10, what we can say, अगर हमारे पास 4 10 के बंडल हो तो हम क्या कहेंगे, तो 4 10 will be the equal to 40. हमारे पास 4 बंडल 40 के इक्वल होंगे. So dear student, can you tell the number of these bundles in the boxes? आप क्या इन एम्प्टी बॉक्सेस में बता सकते हैं कि इन बंडल्स की वैल्यू क्या है? तो dear student, we can tell the value of tens by using the counting. In the first question we can say that there is a 2 bundle of pencils. हमारे पास पेंसिल्स के 2 बंडल है, एक बंडल 10 का है, दूसरा बंडल भी 10 का है, तो हमारे पास टोटल जो बंडल होंगे वो 20 बनेगा. We have to count the bundle of tens to tell the right answer. हमें 10 के बंडल्स को काउंट करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इन द सेम वे वी कैन काउंट देयर आर द 4 tens in the second one, it will be 40. Then 8 tens in the next bar, which is 80, then 50 and 60, 90, and the last two is the 30 and 50. How can we say that? But we can say that by counting the number of tens. हम number of tens को count करके बता सकते हैं. So dear student, the picture in front of you, let we write the number in the descending form. हम इस नंबर्स को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम डिसेंडिंग फॉर्म में पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं. डिसेंडिंग फॉर्म बेसिकली नंबर्स को अप से डाउन की तरफ लेके जाने का तरीका है. यानी अगर आपके पास नंबर 10 है तो डिसेंडिंग फॉर्म में कैसे आएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एंड वी कैन से दैट we will write the number from 10. The descending form will be 10, 9 and 8. The next number is 40. We want to write the number descending from the 40. हम 40 को descending form में कैसे लिखेंगे, 39, 38, 37, 36, 35, 34 and the number will be at this point. Hence we solve the empty boxes by counting the number backward. हमने नंबर को backward में काउंट करके इसे सॉल्व कर लिया है. अब इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल रिकग्नाइज द 100 एज अ 3-digit नंबर. हम 100 को एज अ 3-digit नंबर रिकग्नाइज करेंगे. कैसे? वी कैन से दैट 9 tens एंड 9 ones आर द 99. हम ये पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास 9 1s प्लेस पे भी 9 हो और 10s प्लेस पे भी 9 हो तो वो बनता है 99, जो हमारे पास लास्ट नंबर था जो हमने अपनी काउंटिंग में पढ़ा था. अगर हम इफ़ वी ऐड 1 more, अगर हम इस 99 में 1 more ऐड कर दें तो क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट 10 tens will be formed and 10 tens are the 100. हमारे पास 10 bundle of 10 बनेंगे क्योंकि हमने अभी तक 9 bundle of 10 पढ़े थे जो कि 90 था.
यहाँ पे हमने 10 के 10 बंडल्स देखे हैं जो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। वी राइट इट एज 100 एंड 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। हम कैसे लिखते हैं 100 और हमारे पास 100 3 डिजिट नंबर था। 99 तक जो नंबर थे वो 2 डिजिट नंबर थे। 99 तक 2 डिजिट नंबर थे और हमारे पास ये अब तीसरा डिजिट जो आया है वो 3 डिजिट नंबर है, जिसमें हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखते हैं हम ज़रा देख लेते हैं। 99 इज़ अ बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 99 है और 100 हैज़ अ 0 टेंस एंड 100 और हमारे पास 0 वंस। अब हमारे पास 100 में 3 डिजिट हैं, हम उसे कैसे बताएंगे। इसमें 0 वंस है, 0 टेंस है और 1 किस प्लेस पे है, 1 हमारे पास 100 प्लेस पे है। तो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट में एक और डिजिट का इजाफा हो गया है। वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद अब हम 100 की तरफ आ गए। 100 इज़ अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर में 100 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम काउंट करते हैं। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको 100 का बारे में इजाफा हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि 100 क्या होता है, 100 को कैसे लिख सकते हैं और 100 की प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है। होपफुली यू हैव गेट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।